So last time we had discussed oogenesis, है ना, कैसे होता है, कैसे प्राइमरी ओवम बनता है, कैसे सेकेंडरी ओवम बनता है. We'll discuss about ovulation, but I guess in the next class. Today we are going to start the menstrual cycle. ठीक है, very important. Almost every time कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है menstrual cycle पे, menstrual या ovarian cycle में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है. So concentrate on it. You have already done this. ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है. 12th स्टैंडर्ड से ही आपके ये चलता जा रहा है. Yes, please come in. So we'll just have a quick review कि क्या है menstrual cycle and what is happening during the menstrual cycle. What importance अभी क्या importance है इस चीज की कि हम hormones के ऊपर concentrate करेंगे. We'll be concentrating on the hormonal, not exactly what is happening during the menstrual changes. मतलब whatever is happening in the uterus or ovary. We are basically going to concentrate on the hormones के hormones के level को क्या हो रहा है, because that is what is managing the menstrual cycle. ठीक है, तो क्या है menstrual cycle? Obviously we know once a month bleeding happens in the females who are ovulating of childbearing age. So the length of the menstrual cycle usually averages about 28 days. हमको पता है कि वेरी कर सकता है. 21 days से लेके 45 days तक का साइकिल चलता है. Some people have an early menstrual cycle of 21 days. कुछ के 45 days या 1.5 months पे ही menstruals आते हैं. So that is perfectly okay अगर आपका regularly यही चलता जा रहा है. हाँ, अगर पहले आपका 28 days cycle है या 30 days cycle है and then it suddenly shifts to 45 days or more, so that is abnormal. But if right from the beginning of the menstruation, if the cycle is of 45 days, that's okay. Mostly these cycles automatically after proper ovulation or after the starting of the sexual life, they start getting okay on their own, क्योंकि hormonal changes होती हैं whenever the sexual life of the girl develops or when the ovulation becomes proper. So according to that अपने आप menstrual cycle normal होना शुरू हो जाता है. अगर पहले abnormal है, मोस्टली हम लोग यंग अडल्ट में मतलब 18 to 23 years of age, we prefer not to give any kind of a hormonal treatment. Why? We do not give any kind of a hormonal treatment even if the cycles are not very 28 day cycle नहीं है, perfect नहीं है, हम hormones नहीं देते. क्यों? Why do we prefer not to give hormones? Why don't we give estrogen pills to young girls? Why do we avoid that? कौन से साइड इफेक्ट्स? कौन से साइड इफेक्ट्स? हॉर्मोन्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं. कौन से साइड इफेक्ट्स? कैन यू नेम अ फ्यू which are really going to matter when you are 18 or 19 or 20 years of age? Yes, true. अगर आपका ईस्ट्रोजन लेवल हाई डोज ईस्ट्रोजन पिल्स आप दोगे तो उनके एंड्रोजेनिक फीचर्स आने शुरू हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ हो जाएगी ज्यादा, या मतलब जो बियर्ड टाइप हेयर ग्रोथ होगी, है ना, ये सब फीचर्स. और बताओ, ये है अगर हम ज्यादा ईस्ट्रोजन हाई लेवल, अगर लो डोज पिल देंगे तो नहीं होगा. और बताओ, गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, बिल्कुल. ब्रेस्ट डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगी, सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाएंगे. ठीक है, बिकॉज दे आर कॉजिंग नॉट ओनली द यूट्रस के ऊपर सिर्फ एक्ट नहीं कर रहे, वो पूरी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं. तो सेकेंडरी सेक्सुअल जो है फीचर्स वो बढ़ जाएंगे. तो गर्ल विल लुक मोर मेच्योर एज शी शुड एट हर एज. व्हाट एल्स? ये भी इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, वेरी करता है बॉडी टू बॉडी. Weight gain, because it's going to lead to water retention. Hormones are going to lead to salt and water retention, and so what is going to happen? हाँ, very true. Weight gain होगा. Weight gain होगा तो क्या होगा? Polycystic ovarian disease होने के chances बढ़ जाएंगे, because it's a vicious cycle. Polycystic ovarian disease क्या होता है? ओवरीज में ओवम के साथ साथ बहुत सारी cysts बनी हुई रहती हैं, and they disturb the actual ovulation. So what is going to happen? Actual ovulation is not going to happen. Hormone disturbance plus weight gain होता ही जा रहा है, hormone disturbance, तो vicious cycle बनता रहता है और proper PCOD की तरफ को पेशेंट जाना शुरू हो जाता है. So we have to avoid giving the hormones at a younger age.
प्लस इसके अलावा एक बहुत मेजर फैक्टर होता है कि हार्मोन्स जो हैं वो हमारे मेंटल स्टेट को अफेक्ट करते हैं. वी ऑल नो अबाउट द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. आई गेस ईच एंड एवरी गर्ल नोज अबाउट द PMS. इवन द बॉयज डू, because they're always saying girls are PMSing or something. You keep on saying. So what is premenstrual syndrome? What is it? Irritability, है ना, छोटी छोटी बात पे इरिटेशन होना, ईटिंग हैबिट चेंज हो जाना, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाना, ये सारा प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है जो कि हम सबको होता है. लेकिन जब हम किसी पेशेंट को स्पेशली एट अ यंगर एज जो कि अभी अपने हार्मोन्स लेवल उसके बहुत अप डाउन चल रहे हैं, उसको अगर हम हार्मोनल डोजेस देनी शुरू कर देंगे तो ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो जाएगा एंड इट विल कंटिन्यू थ्रू आउट द साइकिल. सो मेंटल इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे. ये सारी चीजें जो है ये आपकी नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करेंगी. सो बाय द एज ऑफ 23 और 24 व्हेन द नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ ऑफ द फीमेल डेवलप्स, तब तक हम लोग अवॉइड करते हैं कि हार्मोन्स ना दिए जाएं और मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने आप सेट हो सके. कुछ चीजें हैं, some kind of Ayurvedic medicines which actually work in it. Though we make fun of Ayurveda a lot and we should because we are not Ayurvedic doctors, but still कुछ ऐसी चीजें हैं आयुर्वेदा में जो actually help करते हैं. And if a younger patient comes to you with menstrual abnormalities, you can consider her putting on some kind of an Ayurvedic preparation and multivitamins, proper diet, instead of putting her directly on the hormones. ठीक है, जब तक ये बहुत ही abnormal नहीं चल रहा है, right? So let's start कि 28 days का cycle होता है फीमेल का, ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती, हमें पता है. ड्यूरेशन ऑफ ऑल साइकिल्स इज नॉट द सेम इन वन विमेन, ये भी हमको पता है कि कई बार 28 डेज का साइकिल चलता रहता है, सडनली इट कैन शिफ्ट ओवर टू 30 डेज, कई बार प्री आ जाता है, कई बार पोस्ट आ जाता है, ये चलती ही रहती है वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द हार्मोन्स व्हिच आर सर्जिंग थ्रू द बॉडी. साइकिल इज डिक्रीज्ड बाय नंबर ऑफ डेज, द फर्स्ट डे बीइंग द बिगिनिंग ऑफ द menstrual bleeding. फर्स्ट डे क्या होता है? इट इज द फर्स्ट डे ऑफ द ब्लीडिंग को हम फर्स्ट डे बोलते हैं एंड मोस्टली 4 to 5 डेज तक होता है. कई लोगों में 7 to 8 डेज तक भी एक्सटेंड हो जाता है, बट मोस्टली इट हैज अ ड्यूरेशन ऑफ 4 to 5 डेज. सो फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, फिफ्थ डे ऑफ ब्लीडिंग, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं. क्या कैलकुलेट करेंगे, क्यों बात कर रहे हैं हम फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग की? फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग पे हम क्यों वो जोर दे रहे हैं? क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है और जब मिस पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं तो हम फर्स्ट डे जो LMP हम लिखते हैं, लास्ट मिस पीरियड, वो फर्स्ट डे से कैलकुलेट होता है, फिफ्थ से नहीं. तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी लिख सकते हैं. इसलिए हम फर्स्ट डे के ऊपर इंसिस्ट करते हैं कि किस दिन को शुरू हुआ आपका वो पता होना चाहिए. ठीक है. द साइकिल बिकम्स इरेगुलर टुवर्ड्स मेनोपॉज. ऑब्वियसली मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन लेवल्स लो होने शुरू हो जाते हैं, कभी सर्ज हो रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी सर्ज हो रहा है, कभी लो हो रहा है, तो साइकिल एकदम मेनोपॉज में इरेगुलर हो जाते हैं. कई बार 3-4 मंथ्स तक नहीं आते हैं, देन सडनली द पेशेंट कुड बी हैविंग heavy bleeding. So that is normal during the menopause stage. Nevertheless, irregularity of the cycle length or duration or quantity of bleeding in an apparently normal woman indicates a dysfunction of reproductive system. बिल्कुल, अगर बहुत abnormality चलती जा रही है, एक आधा cycle abnormal होना is quite normal. One or actually every 6 months you will be experiencing one or the other cycle is irregular. So that is okay. It could be a missed period or it could be an early period or it could be a heavy period. That is normal because continuously हमारा जो uterus है that is exposed to lots of infections and UTIs and what all, कुछ ना कुछ सब clinically चलता रहता है. Clinical symptoms नहीं आते, लेकिन सब clinically आपके hormone level ऊपर नीचे होते रहेंगे. So that is okay. लेकिन अगर continuous irregularity चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपका reproductive system proper work नहीं कर रहा, something or the else is wrong with the uterus or the things which are controlling the uterus. Better. Physiologically, menstrual cycle temporarily ceases during pregnancy and lactation. We know that. Pregnancy में नहीं होगा and lactation में क्यों नहीं होता? Because of increased levels of prolactin. Prolactin estrogen और progesterone के को suppress कर देगा.
अबाउट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, पता ही है फॉलिकुलर फेज है और फिर आपका सिक्रीटरी फेज है, ठीक है, मतलब प्री ओव्यूलेटरी, पोस्ट ओव्यूलेटरी। ओव्यूलेशन से पहले का फेज जिसमें क्या होगा, ओव्यूलेशन से पहले क्या होता है, यूट्रस प्रिपेयर हो रहा है टू इम्प्लांट अ फीटस। व्हाट इज बेसिकली मेंस्ट्रुएशन, कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो चीजें हमें हटानी है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है टू इम्प्लांट द बेबी और द फर्टिलाइज्ड एग, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज जो है वो प्री ओव्यूलेटरी है, यूट्रस इज प्रिपेयर इटसेल्फ। जो आपका ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज है वो पोस्ट ओव्यूलेटरी है, कि फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुई और थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, वी हैव टू शट देम ऑफ। So post the ovulatory phase is the luteal phase. So follicular phase is the period from the onset of bleeding to the day of ovulation. This is called the follicular phase, as a dominant follicle in ovary matures in this phase to terminate in ovulation at the end of the phase. समझ आ रही है? ओवम है, डेवलप हो रहा है, ओव्यूलेशन तक उसने बड़े होना है। ओव्यूलेशन होते ही यूट्रस ने देखा कि फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, तो अब जो भी यूट्रस की चेंजेस थी वो हट जाएंगी, ठीक है। तो जो फॉलिकुलर फेज है उसको आगे हमने दो फेजेस में डिवाइड किया है, एक मेंस्ट्रुअल फेज जो कि आपके ब्लीडिंग का फेज है, एंड सेकंड इज द प्री ओव्यूलेटरी फेज जिसमें यूट्रस डेवलप हो रहा है, ठीक है। सो मेंस्ट्रुअल फेज, द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एंड द प्रोलिफरेटिव फेज, फेज ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। Then is the luteal phase. It is that part of the menstrual cycle which is post-ovulatory, as we have talked of. तो इसमें क्या होगा कि जितनी एंडोमेट्रियल लेयर्स में, what is endometrium, you know that? यूट्रस की लाइनिंग को अपन एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होने की वो होती है, ओव्यूलेशन जब होती है और ऐसा लगता है कि फर्टिलाइजेशन हो सकती है, तो ये एंडोमेट्रियल लेयर्स दे गेट थिकन्ड। यू विल बी रीडिंग अबाउट दिस इन एनाटॉमी। बहुत सारे ब्लड वेसल्स उसमें आ जाते हैं एंडोमेट्रियम में, हाईली सप्लाइड, मतलब ब्लड सप्लाई उसकी बहुत ज्यादा हाई होती है, एंड देन लेटर ऑन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट आते हैं, एंड व्हेन दे कंस्ट्रिक्ट द ब्लड सप्लाई इट स्टॉप्स, एंड व्हेन द ब्लड सप्लाई स्टॉप्स तो जितनी एंडोमेट्रियल की लेयर बनी थी वो सारी शट ऑफ हो जाती है। दिस इज बेसिकली द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। So this is called the luteal phase, as the corpus luteum is formed in the ovary. This controls the activities of these phase. This is also called the secretory phase because the endometrium is highly secretory during this phase, also known as the post-ovulatory phase. Clear है? Menstrual phase, then proliferative phase, and then is the secretory phase. Menstrual phase में bleeding होगा, proliferative phase में endometrium बनेगा, blood supply बढ़ेगी, secretory phase में वो सारे को निकालना है, तो blood supply will shut down, endometrium would be shut down, ठीक है। लेंथ we know that 28 days है, प्री ओव्यूलेटरी 14 दिन, पोस्ट ओव्यूलेटरी 14 दिन, ठीक है, क्योंकि 14th डे पे आपकी ओव्यूलेशन होती है। इट इज क्वाइट फिक्स्ड होती है। कुछ केसेस में डिलेड ओव्यूलेशन हो सकती है, वन ऑफ द केसेस इज पीसीओडी, ठीक है, जो इसने बताया था। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में डिलेड ओव्यूलेशन हो सकती है, जिसके कारण आपका ऐसा लगता है कि ये फेज पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें डिलेड ओव्यूलेशन हुई है। लेकिन ओव्यूलेशन के बाद फिक्स 14 दिन में ब्लीडिंग होगी। तो जो ल्यूटियल फेज है, जो सिक्रीटरी फेज है, उसकी ड्यूरेशन फिक्स रहती है। प्री ओव्यूलेटरी कैन वेरी टू सम एक्सटेंट, लेकिन पोस्ट ओव्यूलेटरी जो फेज है, जो ल्यूटियल फेज है, वो तो 100% 14 दिन बाद होगा ही होगा, मेंस्ट्रुअस होगा ही होगा, ठीक है। Length of the luteal phase remains constant irrespective of the cycle length. Now we come to the changes. This is important. Have a look at this diagram. हम लोग देखेंगे कि क्या changes हो रही हैं। See, इसमें आपके follicular phase बताया है और secretory phase बताया है। Now you can see the endometrium. ये आपका endometrium है, ये जो brown बना है, this all is the endometrium. See, this is the endometrium. So you can see कि प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम थिकन हो रहा है,
बढ़ रहा है. दिस इज बेसिकली इन लेयर्स, है ना, लेयर्स ऑफ एंडोमेट्रियम होता जाता है. सो ये आपका एंडोमेट्रियम ग्रोथ हुई जा रही है. यू कैन सी द ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई आपकी बढ़ती जा रही है. एंड लेटर ऑन द ब्लड वेसल्स दे बिकम स्पाइरल. स्पाइरल क्यों हो रहे हैं? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए. ब्लड सप्लाई बढ़ानी है हमको, तो स्पाइरल होगी कोई चीज तो वो सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना ही ब्लड सप्लाई बढ़ेगा. ठीक है, इसलिए ड्यूरिंग द प्रोलिफरेटिव फेज ग्रो करते हैं एंड बाय द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन दे आर कॉइल्ड अप. ठीक है, देन आफ्टर दैट कम्स योर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें एंडोमेट्रियम भी जाता जाएगा और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये आपके शट ऑफ हो जाएंगे. ये आपके हार्मोन लेवल्स हैं. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, 4 फीमेल हॉर्मोन्स हैं जो मेनली इंपॉर्टेंट है. एक और चीज है साथ में इंपॉर्टेंट, वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ठीक है, FSH, LH कंट्रोलिंग हॉर्मोन्स है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आपके ओवरी के हॉर्मोन्स हैं. ठीक है, हमने बात करी थी हाइपोथैलेमस इज द गॉड, देन कम्स द पिट्यूटरी एंड देन कम्स द इफेक्टर ऑर्गन. तो हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है जो कि FSH, LH को कंट्रोल करता है? GnRH. ठीक है, GnRH आपका कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी के FSH, LH को, और FSH, LH आगे कंट्रोल करेंगे आपके ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन को. वेक अप, वेक अप, वेक अप. ठीक है, तो अब FSH, LH को देखो क्या हो रहा है. LH तो बिल्कुल लो चल रहा है, बिल्कुल लो है. मिड साइकिल 14 डे पे पीक आई है. सो वी नो दिस पीक इज नोन एज LH सर्ज. ठीक है, LH सर्ज हुआ है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन और उसके बाद स्टीप फॉल. राइट, सो LH को क्या हो रहा है? LH बेसिकली ऑल ड्यूरिंग द साइकिल इट रिमेन्स इन अ लो फेज एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन व्हेन देयर इज एन LH सर्ज. LH को मॉनिटर करते हैं हम ओव्यूलेशन देखने के लिए. ठीक है, जिस टाइम पे ओव्यूलेशन होती है उस टाइम पे LH और FSH का सबसे ज्यादा या वो रहता है, पीक रहती है. ठीक है, सेम देखो FSH को, FSH भी ऑलमोस्ट LH को फॉलो कर रहा है, थोड़ा सा ज्यादा है बट इट इज ऑलमोस्ट फॉलोइंग द LH एंड देन सडनली देयर इज अ पीक अलोंग विद द LH एट द टाइम ओव्यूलेशन. ठीक, सो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये ओव्यूलेशन के टाइम पे कुछ लेंगे. FSH and LH सर्च एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन विच इज which day? 14 day. Now look at estrogen. What is happening to the estrogen? Estrogen पहले लो लेवल पे है, ओव्यूलेशन के टाइम पे बढ़ा, पीक लिया, उसके बाद पोस्ट सिक्रेटरी फिर से बढ़ा है. देयर इज अ सेकंड स्मॉल पीक पोस्ट सिक्रेटरी फेज, पोस्ट मेंस्ट्रुएशन फेज फिर से थोड़ा सा बढ़ेगा. प्रोजेस्टेरॉन पूरे टाइम लो रहेगा. जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन के बाद ओवम का कोई काम नहीं हुआ, वो बेचारा एट्रीजिया हो गया उसका, तो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया. कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट सिक्रेटिंग द प्रोजेस्टेरॉन. सो पूरे साइकिल में इट विल रिमेन एट अ लो फेज, लेकिन पूरे साइकिल के ड्यूरिंग ये कम रहेगा. इवन एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन कम है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बना ही नहीं है. कॉर्पस ल्यूटियम ने ही प्रोजेस्टेरॉन को बनाना है. तो जब कॉर्पस ल्यूटियम बना उसके बाद आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई जाता है. उस टाइम पे आपका ईस्ट्रोजन लेवल लो रहता है. ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? FSH and LH are low during whole of the cycle except mid cycle 14th day at the time of the ovulation when there is a LH surge and a FSH surge. Estrogen will peak at the time of ovulation, otherwise it remains at a lower level, and then there is a second peak at the post ovulatory phase. ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन है टिल द ओव्यूलेशन इट हैज अ वेरी लो लेवल, लेकिन as soon as the corpus luteum is formed there is a peak of progesterone. क्लियर है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे नॉर्मली नहीं रिलीज होते, लेकिन जब मेंसेस हो रहा है, जब वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, ब्रेकेज ऑफ द टिश्यू हो रहा है, देन द प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रिलीज्ड एंड दीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. जो उस टाइम पे पेट दर्द होता है या जो भी अपन यूट्राइन पेन होता है, it is responsible for the uterine contractions and also for other symptoms like nausea. Mechanism of menstrual bleeding, we know that artery spiral थी, coiled थी, वो shrink कर जाएंगी तो blood supply बंद हो जाएगी,
तो जितनी एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ होगी, सारी आर्टरीज जो है वो ब्रेक डाउन होगी, उसके कारण ब्लीडिंग होगी, प्लस जो टिश्यू आता है वो एंडोमेट्रियल टिश्यू है, ठीक है, जो कि मेंसेस में आता है. द कॉइल्ड आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट एंड रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द एंडोमेट्रियम. फोकाई ऑफ नेक्रोसिस. सो वी वर टॉकिंग अबाउट के आर्टरीज, द कॉइल्ड आर्टरीज दे कंस्ट्रिक्ट, नेक्रोसिस होता है और उसके कारण मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है. अब मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स क्यों हो रहे हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कारण. अपन ने अभी बात की, vasoconstriction and uterine contractions are mediated by prostaglandins which are formed in endometrium in response to the plasma estrogen and progesterone. हमें पता है कि जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया उसके बाद ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर रहा है, ईस्ट्रोजन का स्पेशली, तो उसके रिस्पॉन्स में प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, प्लस जो नेक्रोसिस हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीज हो रहे हैं. The main mechanism of dysmenorrhea, which is the menstrual cramps, is overproduction of prostaglandins causing excessive uterine contractions. Plus, they also cause smooth muscle contraction in other parts of the body, जिसके कारण क्या क्या होगा? Nausea, vomiting, headache, all these are associated with the dysmenorrhea. ठीक है? Clear है? Let's proceed. Now we come to hormonal changes in menstrual cycle. कई बार आपको सिर्फ menstrual cycle पूरा ऐसा चाहता है, कई बार just the hormonal changes in menstrual cycle आता है. So you have to write about all the 4 hormones. सबसे पहले let's talk about estrogen. So estrogen has 2 peaks. हमने बात करी ही कि 2 peaks हैं उसकी. एक major peak है जो कि ovulation के टाइम पे है और उसके बाद post secretory phase उसकी second peak है. The first peak, which is a major peak, occurs about 48 hours before the ovulation. ठीक है, just before the ovulation. So this is again an MCQ which we mostly do wrong. कि estrogen का peak कब आता है? ठीक है, LH surge exactly at the time of ovulation आता है. Estrogen का जो surge है वो slightly पहले आता है, 48 hours पहले आता है. ठीक है, so 48 hours before the ovulation is the first peak. And the second peak, which is a minor peak, occurs in the post-mid-luteal phase. Mid-luteal phase मतलब जब corpus luteum बन चुका है, secretory phase start हो चुका है, उसके mid cycle में एक second peak आता है. With the growth of period cycle, estrogen concentration slowly increases in early part of the follicular phase. हमको पता है जैसे जैसे proliferation हो रहा है, वो proliferation हो ही क्यों रहा है? क्योंकि estrogen धीरे धीरे बढ़ रहा है. ठीक है, estrogen is responsible for the proliferation of the first peak 48 hours before the ovulation, second peak post mid-luteal phase. जब ओवेरियन फॉलिकल ग्रो कर रहा है तो ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है. ईस्ट्रोजन रिलीज होने के साथ ही proliferation बढ़ता जाता है. ठीक है, it increases in the early part of the follicular phase. Concentration rapidly rises from the 8th day of the cycle to the 14th day of the cycle. 8 से 14 दिन तक आपका जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो बढ़ता जाएगा. ठीक है, it reaches a peak about 1 to 2 days, मतलब 1 to 2 days का मतलब वही 48 hours before the ovulation. The concentration decreases thereafter and then further after ovulation. जैसे ही ovulation होगी ईस्ट्रोजन का लेवल फॉल करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब हमें उसको प्रोलिफरेट जरूरत नहीं है. बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो कौन मेंटेन करता है इस एंडोमेट्रियम को? प्रोजेस्टेरोन. जो कॉर्पस ल्यूटियम ने बनना है उसी ने ही आपके प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना है, क्योंकि इस कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओव्यूलेशन, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओव्यूलेशन है ये कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी बन जाता है. द सेम कॉर्पस ल्यूटियम gets converted to corpus luteum of pregnancy. That starts producing progesterone and then that sustains the endometrium. Otherwise, it has to shut off. ठीक है? So after 2 days of ovulation, that is after the formation of corpus luteum, again the estrogen concentration increases slowly to reach a smaller peak that occurs just after the mid-secretory phase, preparing the endometrium for the next. ठीक है, वो साइकिल तो हो गया, पता लग गया कि इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन अब नेक्स्ट को तो करना है. तो प्रिपरेशन में ईस्ट्रोजन अपने लेवल को थोड़ा वापस से मेंटेन करता है. अगर ये सेकेंड पीक नहीं आएगी तो नेक्स्ट साइकिल आपका नॉर्मल नहीं जाएगा. ठीक है, सो दिस सेकेंड पीक इज एक्चुअली इन
preparation for the next cycle. First peak is for the ovulation, second peak is for the preparation of the next cycle. ठीक है, अगर by chance estrogen level गिर ही जाए after the first peak, जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ उसके बाद estrogen level वापस ले ही ना, पीक ले ही ना, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ओव्यूलेशन होगी ही नहीं एंड द साइकिल विल गेट डिस्टर्ब्ड. नाउ प्रोजेस्टेरॉन कंसंट्रेशन इज मिनिमल इन द प्रोलिफरेटिव फेज. हम कहते हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का कोई काम नहीं है नॉर्मल एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए. प्रेगनेंसी वाले एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में काम है, नॉर्मल को मेंटेन करने में कोई काम नहीं है, तो वो अपना लो लेवल रखता है. It starts rising following the ovulation and reaches a peak of 4 to 5 days after the ovulation. क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन गया 4-5 दिनों में, और 4-5 दिनों में कॉर्पस ल्यूटियम ने अपना प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट कर दिया. ठीक है, पीक इज मेंटेन्ड इन द कॉर्पस ल्यूटियम इज एक्टिव. अगर तो प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा, इट्रीजिया हो जाएगा, इसका प्रोजेस्टेरॉन खत्म. अगर प्रेगनेंसी हो गई तो दिस कॉर्पस ल्यूटियम गेट्स कन्वर्टेड टू द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, starts producing the progesterone and the progesterone maintains the pregnancy up to approximately 5 months. ठीक है, then when regression of the corpus luteum, progesterone concentration decreases towards the end of the luteal phase. secretory phase जब खत्म होगा, corpus luteum degenerate कर गया है, progesterone है नहीं, तो उसका पीक खत्म हो जाएगा. समझ आए इस बात को? किसी को कोई डिफिकल्टी? नाउ लेट्स कम टू FSH एंड LH. अब LH को क्या हो रहा है? हमने देखा है LH हमेशा लो रहा है, बस ओव्यूलेशन के टाइम पे उसने पीक ली है. ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग रिमेन्स लो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द प्रोलिफरेटिव फेज. हाउएवर, अ डे बिफोर द ओव्यूलेशन, secretion of LH sharply increases to reach a peak about 8 to 10 hours before the ovulation. LH surge just before the ovulation, actually at the time of ovulation, मतलब उसी दिन ही ovulation के टाइम पे ही LH surge होती है. अब इस चीज को आप नोटिस करो कि उस समय ईस्ट्रोजन भी हाई है, LH भी हाई है. अगर if you people ever talk about persons with menstrual abnormalities or something, you might be hearing about mid cycle bleeding. कुछ के मिड साइकिल ब्लीडिंग होती है. ऑन द 14th डे एट द टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन ब्लीडिंग हो जाती है. वो ब्लीडिंग इनके कारण है. इट इज बिकॉज ऑफ द LH एंड द ईस्ट्रोजन सर्ज. क्योंकि ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है? प्रोलिफरेट तो करता है एंडोमेट्रियम को, लेकिन प्रोलिफरेशन के साथ कोई भी चीज अगर बढ़ रही है, अगर ग्रो कर रही है, तो इट बिकम्स वेरी सॉफ्ट. ठीक है, अगर ईस्ट्रोजन सर्ज हो रहा है प्लस LH सर्ज हो रहा है, एंडोमेट्रियम बहुत सॉफ्ट है, तो वो कई बार एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ब्लीडिंग हो जाती है, विच इज नोन एज अ मिड साइकिल ब्लीडिंग, ऑल्सो नोन एज मिटल-श्मर्स सिंड्रोम. पता है मिटल-श्मर्स सिंड्रोम पढ़ा होगा आपने. मिटल-श्मर्स सिंड्रोम होता है मिड साइक्लिंग एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ब्लीडिंग होना. इट इज परफेक्टली नॉर्मल. इट इज परफेक्टली नॉर्मल. क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली हार्मोनल ग्रोथ शो कर रहा है, हार्मोनल कॉम्पिटेंसी शो कर रहा है. मीन्स इस फीमेल के हार्मोन्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है. लेकिन अगर मिड साइकिल ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद पेन है, तो दैट इज जो मिटल-श्मर्स सिंड्रोम है, ये पेशेंट के लिए प्रॉब्लमैटिक है. क्योंकि एक तो उसको मिड साइकिल भी ब्लीडिंग हो रही है, 28 डेज का साइकिल है, उसमें 14 दिन पे भी उसको डिफिकल्टी हो रही है, प्लस उसको पेन हो रहा है. तो दैट इज इनकन्वीनियंट टू द पेशेंट, दो इट इज नॉर्मल. हमारे लिए वो नॉर्मल है, मेडिकली इट इज नॉर्मल, बट इनकन्वीनियंट टू द पेशेंट. तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? व्हाट वी कैन डू? यूज योर माइंड. व्हाट वी कैन डू? अगर किसी पेशेंट को मिड साइकिल ब्लीडिंग हो रही है एंड इट इज वेरी इनकन्वीनियंट टू द पेशेंट, सो व्हाट वी कैन डू? प्रोजेस्टेरॉन लगाएंगे तो सारा ही हार्मोनल डिस्टर्बेंस कर देंगे. वो तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम ने डिजेनरेट करना था आगे, है ना. प्रोजेस्टेरॉन से अकेले से तो नहीं होगा. क्या कर सकते हैं हम? यूज योर माइंड. क्या कर सकते हैं? जो भी आ रहा है दिमाग में बताओ, क्या कर सकते हैं? हमने उसकी मिड साइकिल ब्लीडिंग को रोकना है, हमने ये ईस्ट्रोजन और इसके इफेक्ट को रोकना है ताकि पेशेंट को इनकन्वीनियंस ना हो. ओव्यूलेशन बंद करो.
ओव्यूलेशन मत होने दो, गिव हर अ ब्रेक फ्रॉम ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को ब्रेक कैसे दोगे? विद द हेल्प ऑफ एक्विट। कैसे करोगे ओव्यूलेशन को? कैसे करो? पिट्यूटरी पे चले जाओगे, पूरा ही सारा कुछ ही डिस्टर्ब कर दोगे। ओव्यूलेशन इनहिबिशन कब करते हैं अपन? चलो बताओ मुझे। यस, हु सेड? वेरी गुड, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में हम क्या कर रहे हैं? वी आर गिविंग ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इन लो डोज, ठीक है, विच इज प्रिवेंटिंग द ओव्यूलेशन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब भी तो यही है। कॉन्ट्रासेप्शन में हम ओवम को रिलीज नहीं होने दे रहे, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि ओवम रिलीज हो गया और फिर स्पर्म नहीं आ रहा है कुछ। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ये बेसिकली ओव्यूलेशन को बंद करती। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि पेशेंट को मिड साइकिल ब्लीडिंग और पेन से बहुत डिफिकल्टी है, तो हम उसकी ओव्यूलेशन में ब्रेक दे देते हैं, हम उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे डाल देते हैं फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 months। हम 3 महीने इज द एवरेज विच वी टेक फॉर एनी काइंड ऑफ अ हार्मोनल ट्रीटमेंट, क्योंकि इट टेक्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द हार्मोन्स फॉर 3 months, ठीक है। तो 3 महीने उसको ब्रेक पे डाल दो, उसका ओव्यूलेशन स्टॉप कर दो, ऑटोमेटिकली आफ्टर 3 months सेट हो जाता है पीरियड, ठीक है। ओव्यूलेशन स्टार्ट्स एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर द पेशेंट। इफ इट डजंट बिकम ईजियर फॉर द पेशेंट, देन वी हैव टू कंटिन्यू द हार्मोनल ट्रीटमेंट। कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं, बट वी प्रेफर द हार्मोनल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो कहां थे हम एक्चुअली? केयरलेस सर्ज हो गया, therefore it declines in 24 to 48 hours, remains low in the rest of the secretory phase. FSH एक्चुअली उसको ही फॉलो कर रहा है, हमेशा लो ही रहेगा, फिर उसके बाद LH को फॉलो करते हुए वो synchronous with the rise in LH, secretion of FSH also rises towards ovulation, फिर उसके बाद वो कम हो जाता है। इनहिबिन को तो प्रोजेस्टेरोन फॉलो करता है। क्लियर? अब आ गए डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एमेनोरिया, एमेनोरिया का मतलब है कि मेंसेस कभी हुए ही नहीं। तो क्या हो सकता है? प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी का मतलब क्या है? कि कभी स्टार्ट ही नहीं हुए। प्राइमरी का मतलब क्या है? कि कभी मेंसेस स्टार्ट ही नहीं हुए। सेकेंडरी का मतलब क्या है? शुरू तो हुए लेकिन उसके बाद ये बंद हो गए। प्राइमरी के कॉजेज क्या हो सकते हैं? बताओ, खुद बताओ क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं प्राइमरी के? हार्मोनल डिसबैलेंस तो सेकेंडरी होगा ना, हार्मोनल डिसबैलेंस सेकेंडरी होगा। प्राइमरी में तो हार्मोनल मतलब हार्मोन्स ही नहीं है, दैट कुड बी एन ऑप्शन। तो मतलब she could be having some kind of a chromosomal abnormality, Turner syndrome, super females, ये वो, एक्सो प्रॉपर ही नहीं है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स प्रॉपर नहीं बने, इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर नहीं बने, तो उसमें आपके प्राइमरी एमेनोरिया रहेगा। एक और बड़ा मेजर होता है जो कि अपन फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, वी वेट फॉर द चाइल्ड टू हैव द मेंसेस, उसको नहीं होते हैं, देन सडनली द पेरेंट्स कम विद अ ह्यूज स्वेलिंग एंड सिवियर पेन, है ना। 12-13 ईयर्स की एज की गर्ल्स में ये होता है। क्या उसमें क्या होता है कि हाइमन जो होता है वो बहुत थिक होता है एंड एक तरीके से इट फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ कवरिंग ओवर द वेजाइना, मतलब वेजाइना को ही कवर कर दिया, जहां से ब्लीडिंग होनी है वो आउटलेट ही क्लोज्ड है। सो व्हाट इज हैपनिंग? एक्चुअली द पेशेंट इज ब्लीडिंग बट द ब्लीडिंग इज नॉट कमिंग आउट। पेरेंट्स थिंक कि अभी इसका स्टार्ट ही नहीं हुआ, जबकि स्टार्ट हो चुका है। फिर क्या होगा? 3-4 महीने वो पेशेंट ब्लीड करता रहेगा, वो ब्लीडिंग इंटरनली ही कलेक्टेड रहती है, सम ऑफ इट ऑब्वियसली गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय द अपनी इम्यूनिटी, जो भी अपने ऑर्गन्स अंदर जो काम करते हैं सेल्स, लेकिन मोस्टली इट गेट्स कलेक्टेड इन द पाउच ऑफ डगलस एंड ऑल। सो द पेशेंट विल कम विद severe pain in the abdomen, some kind of a swelling over the lower abdomen. So we can have a guess that something is wrong. The patient was bleeding, but the bleeding was not coming out because the vagina is closed by a thick membrane. ठीक है? तो उसमें surgically just incision is given and the whole thing comes out, right? So physiological primary before puberty, अगर एमेनोरिया नॉर्मल है, चाइल्डहुड में पता ही है, जब तक प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं होगा तब तक आपके मेंसेस स्टार्ट नहीं होंगे। यूजुअली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स एट अबाउट एज ऑफ
12 to 14, but these days menstruation is early, around 10 to 11 days. Why? Why has the menstruation age decreased? Dietary habits में क्या? Dietary habits में, you tell me the dietary habits. Preservatives, okay. I won't exactly say preservatives. और बताओ. दो मेजर रीजंस है जो हम ये जितने हम फास्ट फूड खाते हैं उसमें टैनिन्स होते हैं. Tannins are responsible for the early menstruation or early puberty. Secondly, the milk which we are having, because क्या हो रहा है कि मिल्क प्रोडक्शन उतनी नहीं है जितने का कंजम्पशन है. So what they do is they give estrogen injections to the cows. अब estrogen जो हम मिल्क पी रहे हैं उसी में ऑलरेडी estrogen हाई है, तो that estrogen is going to lead to early menstruation. इसलिए प्लस ऑब्वियसली सोशल मीडिया एक्सपोजर, जितना आपका एक्सपोजर होगा टुवर्ड्स द सेक्सुअल रिलेटेड थिंग्स एंड ऑल, सो व्हाट हैपेंस कि वैसा मेंटेलिटी है वैसा ही हार्मोन लेवल रहेगा. जितना एक्सपोजर ज्यादा होगा उतना ही हार्मोन्स आपके जल्दी सर्ज करेंगे. सो दीज आर द 3 मेन रीजंस जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन आजकल 9 to 10 ईयर्स में ही मिल रहा है, जबकि पहले 13-14 ईयर्स तक होता था. ठीक है. Then constitutional, no menstruation starts at age of 16. Constitutional basically genetic है. जैसे मीनोपॉज जेनेटिक होता है, अगर मदर का मीनोपॉज लेट हुआ है तो बच्चे का मीनोपॉज भी लेट ही होगा. इसी तरीके से मिनार्के है, अगर मदर का मिनार्के या ग्रैंडमदर का मिनार्के अर्ली एज में हुआ है तो चाइल्ड का भी होगा, या लेट हुआ है उसका हुआ ही 16 या 18 ईयर्स पे है तो चाइल्ड का भी 16 या 18 ईयर्स पे ही होगा. सो हेरिडिटरी फैक्टर ऑल्सो डिटर्मिन्स whether the amenorrhea is primary or secondary. ठीक है. Then what else? Pathological genetic defect हमने बात करी ली, Kallmann syndrome, Turner syndrome, and then any congenital malformation of the reproductive tract, जैसे कि यूट्रस ही एब्सेंट है. ठीक है, यूट्रस एब्सेंट है या कोई और तरीके ओवरीज एब्सेंट है या कुछ, तो सब में आपके ये प्रॉब्लम हो जाएगी. अब सेकेंडरी एमेनोरिया, जब पहले तो नॉर्मल था लेकिन बाद में बंद हो गया. फिजियोलॉजिकल कॉजेज हमको पता है कौन से, प्रेगनेंसी एंड क्या हुआ, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. जो भी बात करनी है लेक्चर के बाद में करो. ठीक है. प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन आर द फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया. और क्या कॉजेज हो सकते हैं? इन द फर्स्ट 1 or 2 years ऑफ मेनार्के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर एनोव्युलेटरी. हमने बात करी थी लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि पहले कुछ साइकिल्स एनोव्युलेटरी होते हैं, उसमें ओवम रिलीज नहीं होता है. ठीक है. तो कई बार क्या होता है कि एक बार तो मेंसेस आ जाता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा और यूट्रस उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं हो रहा. तो कई बार 2-3 महीने के लिए फिर पेशेंट को मेंसेस नहीं आता है. तो दैट इज नॉर्मल क्योंकि उसके ओव्यूलेटरी साइकिल अभी स्टार्ट नहीं हुई है. She could bleed without pain. ठीक है. She could not bleed for 2 or 3 months. That is also. ये सब चीजें मेनार्के के टाइम पे नॉर्मल होती हैं कि हो सकता है कि एक बार आने के बाद 2-3 महीने पीरियड आई ना, कोई बात नहीं, वेट करो, वेट फॉर 3-4 months, एक्चुअली वेट फॉर 6 months, लेट द पीरियड्स कम ऑन इट्स ओन. कई बार क्या होता है विदाउट पेन आ रहे हैं, देन सडनली बहुत ज्यादा पेन हो रही है, जैसे कि अपन ने बात की थी कि एनोव्युलेटरी साइकिल है तो वो पेनलेस रहेगा, ओव्यूलेटरी साइकिल होगा तो वो पेनफुल होगा. ठीक है. प्रेगनेंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया, वी नो दैट. लैक्टेशन ऑब्वियसली क्योंकि प्रोलैक्टिन जो है वो GnRH की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है. प्रोलैक्टिन ने हाइपोथैलेमस को इनहिबिट किया, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को इनहिबिट किया, पिट्यूटरी ने ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं बनने दिया. ठीक है. तो आपका मेंसेस होना बंद हो गया. इमोशनल डिस्टर्बेंस, क्यों? इमोशनल डिस्टर्बेंस में अगेन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, लिम्बिक सिस्टम, पूरा लिम्बिक सिस्टम वी विल बी डिस्कसिंग इन CNS. जो लिम्बिक सिस्टम है वो हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है और लिम्बिक सिस्टम हमारे हाइपोथैलेमस से अटैच्ड है. तो ऑब्वियसली जो भी हमारी इमोशंस है वो हमारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को डिस्ट्रक्ट करेगा. अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा मतलब लेथार्जी है,
तो ये सब क्या करेंगे, GnRH को फिर हाइपोथैलेमस को डिप्रेस कर देंगे। तो जब आपका ग्रोथ हार्मोन ही रिलीज, GnRH रिलीज नहीं होगा, रिलीजिंग हार्मोन ही रिलीज नहीं होगा, तो ना तो FSH रिलीज होगा, ना LH रिलीज होगा, ना ही आगे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। Changes in environment, we know that mostly traveling के ड्यूरिंग जब भी हमारा प्लेस हुआ है या थोड़ा एग्जॉस्शन ज्यादा हो गया है तो मेंसेस जल्दी आ जाते हैं, तो दैट इज एक्चुअली नॉर्मल। देन मीनोपॉज, वी नो दैट कि मीनोपॉज के टाइम पे आपकी ओवरी श्रिंक कर गई हैं, स्टिमुलेशन गोनाडोट्रोफिन की उसके ऊपर एक्ट नहीं करती। अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 years पहले साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं एंड देन दे कंप्लीटली स्टॉप। पैथोलॉजिकल हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स, ऑब्वियसली पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स, FSH LH नहीं बनेगा। ओवेरियन डिजीजेस, ईस्ट्रोजन नहीं बन रहा, इसमें सबसे मोस्ट कॉमन PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और स्टीवलिफेंटन सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा है, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बन जाती हैं ओवरी में, नॉर्मल ओव्यूलेशन होने नहीं देती हैं। बहुत कॉमनली मिसडायग्नोस्ड है। हम में से आज अगर हम सभी सोनोग्राफी कराएंगे तो एटलीस्ट 60% का PCOD डायग्नोस हो जाएगा। बहुत कॉमनली मिसडायग्नोस्ड है क्योंकि फिजियोलॉजिकल सिस्ट हमारी ओवरी में बनते ही रहते हैं। दे कीप ऑन फॉर्मिंग एंड दे कीप ऑन डिसॉल्विंग। सो ऑब्वियसली मतलब ऑटोमेटिकली हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर एक सोनोग्राफी में हमें सिस्ट दिखे ओवरीज में तो वी हैव टू गेट एटलीस्ट 3 sonographies done before labeling the patient as a patient of PCOD, because PCOD itself is a very difficult condition। जब वो चाइल्ड बेयरिंग एज में जाएगी, क्योंकि ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो उसके सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इनफर्टिलिटी का एक बहुत मेजर कॉज है PCOD। लेकिन अगर हम इसको मिसडायग्नोज कर दें और पहले ही पेशेंट को हॉर्मोन्स पे डाल दें, तो जिस टाइम पे उसको एक्चुअली हॉर्मोन्स की जरूरत है तब तक ओवरी वुड नॉट बी रिस्पॉन्डिंग टू दैट। सो दिस इज अ वेरी मतलब disturbing scenario in today's practice ke as soon as we see a sonography and we see cyst in the ovaries, we label it as PCOD. It should not be done. We should get the sonography done in the next cycle, then in the next cycle. If we see the same cyst in 3 cycles, then we can label the patient as a patient of polycystic ovarian disease. Otherwise we should not label, क्योंकि जो बाकी फीचर्स होते हैं जैसे कि वेट गेन हो गया, हिर्सुटिज्म हो गया, ये आजकल बिकॉज ऑफ द डाइट विच वी आर टेकिंग एंड बिकॉज ऑफ अगेन एज आई सेड बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर, ये हमें वैसे भी मिल जाते हैं। बहुत सारी फीमेल्स में आपको हिर्सुटिज्म या इंक्रीज वेट गेन एज मतलब प्यूबर्टल एज इज कमिंग, ये कॉमन हो जाता है बिकॉज आपके एक्टिविटी नहीं हो रही, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, स्टडीज का प्रेशर बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, फैमिली प्रेशर्स है, ऑल दैट स्टफ, these can contribute to the other features of the PCOD. So just seeing that a patient is having cyst in the ovary plus she is having some hirsutism, we should not label as a patient of PCOD. We should wait for at least 3 sonographies, see the cyst. If they are still persisting, that means we can label it and then treat accordingly. Treat accordingly, we have to give, what we'd have to give? We have to give estrogen. ठीक है, estrogen पे फिर patient को हमें डालना पड़ता है। देन यूट्राइन पैथोलॉजी होगी तो भी हो जाएगा सेकेंडरी एमेनोरिया, सिस्टेमिक इलनेस कोई होगी जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है, क्रॉनिक लिवर फेलियर, कोई भी क्रॉनिक डिजीज होगी, कॉर्टिसोल लेवल डिस्टर्ब, एंड्रोजन लेवल डिस्टर्ब, एवरीथिंग डिस्टर्ब। ठीक है, एंड सम ड्रग्स दे कैन लीड टू सेकेंडरी एमेनोरिया। ट्रीटमेंट क्या करना है? अगर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है, GnRH हमारे पास आता है, ठीक है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के इंजेक्शंस आते हैं, वो लगाए जाते हैं। हम उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं पिट्यूटरी को ताकि वो नॉर्मल FSH LH रिलीज करे, ताकि नॉर्मल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो सके। ठीक है, सो इन हाइपोपिट्यूटरिज्म sequential administration of FSH and HCG is useful, not always recommended but useful। ठीक है, बिकॉज एज आई सेड हॉर्मोन्स के अपने साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, प्लस जब हम कोई भी हार्मोन को एक्सटर्नली देते हैं, बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग इट, वी आर गिविंग इट एक्सटर्नली, तो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ
जो मतलब साइड इफेक्ट है वो एग्जैजरेट हो जाएंगे और जो उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर बॉडी कॉर्टिसोल नहीं बना रही और हम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं पेशेंट को, तो स्टेरॉइड तो आर्टिफिशियल है, कॉर्टिसोल इज नॉर्मली बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी, सो द स्टेरॉइड्स के जो साइड इफेक्ट हैं दैट विल गेट स्लाइटली एग्जैजरेटेड और जो कॉर्टिसोल के नॉर्मल इफेक्ट्स थे वो कम होंगे। सो एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑलवेज डाइसी, वी हैव टू डू इट बिकॉज वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट, बट इट इज डाइसी। If amenorrhea is due to pituitary tumor क्या रिलीज करेगा? प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा। पिट्यूटरी ट्यूमर इज गोइंग टू रिलीज द प्रोलैक्टिन। वेरी कॉमनली पेशेंट्स का प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो पिट्यूटरी ट्यूमर अगर है तो वी शुड प्रेफरेबली रिमूव इट, या फिर हम क्लोमिफेन सिट्रेट करके एक टैबलेट्स होती हैं जो कि उसको डिक्रीज करती हैं, वो वाली टैबलेट हम दे सकते हैं, ठीक है। Surgical removal should be considered. Clomiphene that binds with the estrogen receptors and blocks the estrogen action induces the ovulation. For uterine pathologies, corrective surgeries. Then hypomenorrhea और oligomenoria. Hypo का मतलब bleeding कम हो रही है, oligo का मतलब साइकिल बढ़ गया, छोट कम हो गया, बढ़ गया, साइकिल बढ़ गया है और ब्लीडिंग कम हो गई है। तो ये क्यों होगा? अगेन हार्मोनल डिस्टर्बेंस ही होगी, पिट्यूटरी सप्रेस हो सकती है। इवन इन थायराइड केसेस में भी इट डज हैपन, ठीक है। सो डिक्रीज फ्रीक्वेंसी, साइकिल इज मोर देन 35 days, दैट इज नोन एज ओलिगोमेनोरिया। इट यूजुअली occurs in ovarian diseases and the menstruation is irregular and infrequent. Treatment, hormones. Dysmenorrhea means pain during the menstruation. हमने बात करी थी prostaglandins, they are responsible for the pain, responsible for the cramp. क्या करना है? prostaglandins के रिलीज को सप्रेस करना है। Any kind of a non-steroidal anti-inflammatory drug, NSAIDs, जैसे कि कौन से? ibuprofen, NICE, we commonly take nifedipine, ठीक है, डाइक्लोरन, ऑल ऑफ दीज कैन डिक्रीज द डिस्मेनोरिया। देन वी कम टू मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया और पॉलीमेनोरिया, मतलब साइकिल छोटा हो गया है और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ईस्ट्रोजन लेवल हाई होगा, सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, यू जस्ट हैव टू नो अबाउट इट। इस जर्नी कॉज्ड बाय कंडीशंस दैट अफेक्ट द यूट्रस एंड इट्स वैस्कुलर apparatus. It may be a manifestation of the coagulation disorder. When the cycle is less than 21 days, it is called the polymenorrhea. Premenstrual syndrome, हमने बात कर ही ली थी। PMS में क्या है? Irritability है, bloating है, depression है, ठीक है। ये सब चीजें just before the menses हो जाती हैं। क्यों होती है? क्योंकि उस समय estrogen level हमारा लो है, ईस्ट्रोजन भी लो है, प्रोजेस्टेरॉन भी लो है, FSH भी लो सही चली जा रहा है, फिर सडनली पीक आ रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, तो वो जो डिस्टर्बेंस हो रही है उसके कारण PMS हो जाता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण। और इसमें क्या होगा? एडिमा है, पेनफुल स्वोलन ब्रेस्ट है, डिप्रेशन है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, इरिटेबिलिटी, हेडेक, बिहेवियर चेंजेस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। नाउ सी so many things. These features disappear within 1 to 3 days after the start of menstruation. क्यों? Salt and water retention हो रही है, exact cause नहीं पता। It has been proposed that PMS occurs due to excess and complex interplay between the sex steroids and the neurotransmitters. Just studies, क्योंकि exact cause पता ही नहीं है। Basically यही कहो कि इतने erratic hormones होते हैं इस टाइम पे कि उसके कारण ये सब features उनके आ जाते हैं, ठीक है। Treatment with drugs that prematurely terminate the luteal phase does not give an existential relief. मतलब कहने का मतलब है कि PMS के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना हमें इसका कॉज पता है, ना इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है। Unless and until कोई पेशेंट, कैन यू प्लीज कंसेंट्रेट, फिर बाद में जब तुम्हारे पास ऐसे पेशेंट आएंगे ना, तो तुम अपनी फीमेल कलीग्स को फोन कर करके पूछोगे कि भाई क्या हो रहा है, थोड़ा बता दे क्या करना है। तो अभी कंसेंट्रेट कर लो। तो PMS में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट अगर पेशेंट सिवियर डिप्रेशन में जा रहा है या
कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है तो हम उसको लो डोज पिल्स पे थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, बट प्रेफरेबली हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि ये जो पिल्स हैं ये डबल साइडेड एक्ट करती हैं. दे कैन इवन इंक्रीज द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट. ठीक है, यू मस्ट बी नोइंग कि बहुत सारे पेशेंट्स जब ओसीपीज पे डाले जाते हैं तो डिप्रेशन उनका बढ़ जाता है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर प्रिस्क्राइबिंग दिस हार्मोनल ड्रग्स. ठीक है, सो नो ट्रीटमेंट. हम माइनर ट्रैंकुलाइजर लाइक एल्प्रोजोल हम दे सकते हैं. वी डू नॉट गिव इट. क्लास में होगी. ठीक है, so treatment with alprazolam we can give if the patient is having lots of difficulty, but otherwise we mostly don't give it. ठीक है, this proves the hypothesis that it is a complex interplay between the steroids and neurotransmitters in the brain. Last but not the least, anorexia nervosa. क्या होता है? It's a eating disorder. दो तरीके के eating disorders होते हैं. One is anorexia nervosa and the second is bulimia. Bulimia क्या होता है? Overeating and then vomiting. Overeating कर लिया and then she has to vomit it out because she मतलब just cannot understand कि why I have eaten so much. Anorexia nervosa क्या है? कि patient doesn't eat at all. तो emaciated होगी, बहुत पतली होगी, बहुत ही malnourished होगी, है ना, लो बॉडी फैट होगा. तो उसके कारण क्या होगा? प्लस स्ट्रेस. ऑब्वियसली any kind of a nervosa is stress. This will inhibit the LH secretion and so patient को menstrual abnormalities हो जाएंगी. लेकिन secondary sexual characters well developed होंगे क्योंकि estrogen progesterone बन रहा है. ठीक है, ठीक है, क्लियर है?